First part of indefinite integration, chapter number 3 from HSC Maths 2 textbook. We are in the process of completing this table. So let us proceed. यहाँ पर derivative d I1 और I2. There is one more column that has to be added, लेकिन उस column के बारे में I3 जो होगा वो मैं बाद में discuss करूँगा उसके बारे में. So let's first of all talk about the column I1 and I2, d I1 I2. यहाँ पर derivative of x raised to n, nx raised to n minus 1, integration. These are the formulae of 11th standard. I am refreshing, revising all the formulae of 11th standard. तो आप मुझे इसी लिस्ट का अगला फॉर्मूला बताइए. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x? प्लीज टेल मी. माइनस 1 अपॉन, हाँ मैं पॉइंट करके पूछ लूँ. दिस इज 1b, तो ये 1a था एक्चुअली. दिस वाज 1a, दिस इज आल्सो 1a. 1a 1a. तो यहाँ का 1b क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू minus 1 upon x. Who will tell me the 1b for the third column, I2 का? Please raise your hands. क्या करना होता है इसके अंदर? x is to be replaced by ax plus b. 1 upon ax plus b bracket square into dx 1 upon a into 1 upon ax plus b. यहाँ पर याद रखिए जो भी आंसर होगा उसको 1 अपॉन ए से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. चलिए अगला क्वेश्चन. रूट एक्स हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया. व्हाट इज 1c? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, isn't it? D by dx of x is 1. So who will tell me 1c here? Rohit? अपर्णा? इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा. इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू x. और यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि LHS में x है ही नहीं. सो इट्स अ डैश हियर. डू यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला. सो दिस वाज 1a 1b 1c दैट आई रोट हियर. The next formula that I would like to write here is derivative of a constant. K is a constant. Derivative of a constant 0. और यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं होगा. Did you understand that? ठीक. हाँ. Is that okay? अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of sin x. चलो फटाफट बताइए. डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x. So what is I1 formula for that? Dx. Correct. And what is I2 formula for that? Cos of ax plus b. मुझे पूरा फॉर्मूला चाहिए, सिर्फ RHS नहीं राहुल. That is 1 upon a sin of ax plus b. I want everybody to speak it out loudly, clearly, okay, legibly. D by dx of cos x minus sin x. Aparna, can you tell me I1 formula for this? Sin of ax plus b. Sorry, sin x. Correct. Integration of sin x is equal to into dx is equal to minus cos x. Rohit, can you tell me I2 for this? Integration of sin of ax plus b into dx is equal to minus 1 upon a cos of ax plus b. Is that clear? Fifth formula in the list here, d by dx of tan x. बताइए. sec square x. यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equal to tan x.
और यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ आई टू sec square of ax plus b into dx. Please everybody speak it out loudly. 1 upon a tan of ax plus b. Any doubts about that? This is very clear. Sixth formula, d by dx of cot of x. Correct. Is minus cosec square x. Rohit, I1. This is d, this is I1. Rohit, integration of cosec square x dx is equal to minus cot of x. Avnish, I2. माइनस, तुमने माइनस मन ही मन में बोल दिया, मैंने सुन लिया. ओके. सेवेंथ फॉर्मूला, d by dx of sec x. Aparna will tell me all the three formulae for this. d I1 I2. d by dx of sec x. Hello, sir. Correct. हाँ. Yes. Sir, Yes. स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या? sir, you are muted. कब किया था? ओके. इंटीग्रेशन ऑफ sec of ax plus b tan of ax plus b dx is equal to 1 upon a sec of ax plus b. ये समझा ना रे? Is this okay? Very good. 8 d by dx of Aparna. Thanks for telling me all the three formulae. I'll give you one more opportunity to tell me all the three formulae. d by dx of cosec x. Come on. What is d by dx of cosec x? Okay, who will? Avnish, you tell me all three. डिफिकल्ट वाला आ रहा है ना तेरे लिए? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. यहाँ का 8 वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो फटाफट बताओ. ओके. ओके. इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, कोसेक एक्स प्लस बी कॉट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स is equal to minus 1 upon a cosec of ax plus b. Right? sec cosec सब हो गया. Right? Very good. अब आगे बढ़ते हैं. Yes. Ninth, Rahul, d by dx of log x. Okay. I1, integration of 1 upon x dx. I2, बोलो फटाफट. You don't have to read it, you have to tell me. You are as if you are reading it. बराबर है क्या? Okay. 10th, d by dx of e raised to x. Rohit, all the three formulae. Rohit, Avnish, Neha. Okay. Tell me यहाँ का I1. Okay. यहाँ का I2. Okay. d by dx of a raised to x. Neha. A raised to x into log a. Now log a is a constant. नहीं. A raised to x log upon log a. Integration of a raised to x only. A raised to x into dx. So it will be a raised to x upon log a. Who will tell me I2 for this? Raise your hands.
Raise your hands. हाँ, yeah, this is a raised to mx plus n. समझ में आ गया? Because a is already there. 1 upon m a raised to mx plus n upon log. Any doubts about this? Is this very clear to you all? Hello? Is that okay? So with this, I'll start with the first exercise. Exercise 3.1. ये तो बस एक फॉर्मूले थे, ये तो बस फॉर्मूले ही थे हमारे. अच्छा, इसमें हमने सिर्फ डी i1 और i2 लिखा है, i3 लिखना बाकी है, थोड़ी देर के बाद लिखेंगे वो. ओके, i3 लिखना बाकी है, वो हम एक्सरसाइज 3.2 के शुरुआत में लिखेंगे. तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज टुडे. I'll go with the first exercise now. So to start with exercise 3.1, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने. ठीक है, इंटीग्रेट. थैंक यू फॉर साइलेंस, थैंक यू. क्या हो गया? एक्सरसाइज 3.1. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने वाला हूँ सॉल्व, बट वन थिंग इज दैट आई विल बी सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बाकी नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आपके होमवर्क है और वो आपको साथ में ही करने हैं पूरे. आज के क्वेश्चंस अगर मैं 2 दिन के बाद पूछूंगा जो नहीं मैंने सॉल्व किया, तो आपके साथ वो रेडी होनी चाहिए. मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. आज मैंने सॉल्व किया है, अगर मैं 1 के बाद थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ, तो जो सेकंड वाला है वो आपके पास परसों रेडी होना चाहिए. सिर्फ एक दिन का गैप में छोड़ के जो आज सीखा है उसका होमवर्क मैं परसों चेक कर सकता हूँ. इज दिस क्लियर? परसों, आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन है. आपको पीडीएफ आज ही भेजे जाएंगे. ओके, हेलो. तो यू हैव टू डू दिस एवरी डे. इंटीग्रेशन के लिए 1 घंटा हर रोज देने का भी. समझ में आ रहा है? लेट्स बिगिन. इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. You have to integrate these functions with respect to x. Okay, the very first question. So how do we go about this? Question number 1 make a 2. How do we integrate? तो पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा इंटीग्रेशन का साइन लिखना पड़ेगा into dx. याद रखिए. Is that clear? So let us integrate this now. कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा इसको? So I'll write this x square as it is, and इसको स्क्वायर करना मेरे लिए आसान होगा. So this will be 1 minus 2 into 2 upon x plus 4 upon x square. Did you understand this squaring? Did you understand the squaring? Okay, now that is equal to इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा? Just open this bracket. ये क्या मिल जाएगा तुमको बताइए? x square. Everybody please answer. x square minus 4x plus 4 into dx. क्योंकि x square मन ही मन में कैंसिल कर दिया मैंने. कैसे? मन ही मन में. अब मेरे को इंटीग्रेट करने का है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा जी? इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये 4 बाहर आएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, इंटू एक्स डी एक्स प्लस ये 4 भी बाहर आएगा, इट इज इंटीग्रेशन 1 डी एक्स. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? विच फॉर्मूला? मैं हमेशा फॉर्मूला ऐसे रेड पेन से लिखूंगा. एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. समझ में आ गई? अच्छा, बाय द वे इंटीग्रेशन k इंटू यू डी एक्स इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट, वो बाहर जाएगा, सो इट बी k इंटू इंटीग्रेशन यू डी एक्स. तो इसी तरह से मैंने 4 बाहर निकाल दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पर भी 4 बाहर निकाल दिया. वेल, लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? x रेज टू 3/3. एनी डाउट्स? माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. एनी डाउट्स? आप लोग आंसर कर रहे हो? Please don't get dragged. Am I going very fast? Am I going very fast? Please, fast हो रहा है? तो चलिए, 4 is as it is. What is integration 1 dx? What is integration 1 dx? Integration 1 dx. Integration 1 dx. यहाँ पे चले जाइए. Integration 1 dx x. याद रखिए,
ये जो फॉर्मूला पेज है आज मैं आपको भेज दूंगा, कल आपके पास रेडी होना चाहिए। और ये फॉर्मूला पेज जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला पेज अपग्रेड होता जाएगा। समझ में आ गया? सो द इंटीग्रेशन 1 dx इज x। और हमेशा याद रखिए, हमने 11th में भी देखा था, वी ऑलवेज ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन द लास्ट स्टेप। सो आई विल ऐड हियर प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करते हैं लास्ट स्टेप में। सो 2 2 जा 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, मैं बाद में बता दूंगा आपको। ये नो 11th में मैंने बताया था। ओके, लेट मी टॉक अबाउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल चीज है, आपको बता देता हूँ। व्हाई डू वी ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चलिए आप एक बात यहाँ पे देखिए, मेरे पास 4 क्वेश्चंस है। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x। therefore what is integration of cos x dx? करेक्ट। अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यस और नो? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 cos x। therefore what is integration of cos x dx? sin x प्लस 5, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। सही है अपर्णा? डेरिवेटिव्स, अच्छा तुम्हारा डेरिवेटिव्स भी नहीं हुआ है? हाँ हो गया ना डेरिवेटिव्स थोड़ा थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी डर, लेकिन मेरा और एक क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस √3 क्या आएगा? cos x प्लस 0। therefore what is integration of cos x dx? एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरह से मैं कितने सारे सवाल तैयार कर सकता हूँ, इनफाइनाइटली मैनी। आई मीन लुक एट दिस क्वेश्चंस हियर। अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस तैयार करते हो या देखते हो, लुक एट ऑल दिस क्वेश्चंस हियर। सवाल एक, जवाब अनेक, है ना? क्योंकि दिस टेक एनी वैल्यू, 5√3 पाई, पाई बाय 2, एनी कांस्टेंट इट कैन टेक। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का सही मायनों में जवाब क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस c, cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। ये प्लस c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट कैन टेक एनी वैल्यू, यहाँ पर c का वैल्यू 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर √3, इट कैन बी पाई, इट कैन बी एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर। इज दिस ओके? ओके। अब क्या हुआ है कि एक सवाल का एक ही जवाब हो गया, इसके पहले वन क्वेश्चन एंड मेनी आंसर्स इट वाज, यस और नो? इसी वजह से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट स्टेप में ऐड करेंगे। भगवान के नाम पे हम ये सी ऐड कर देंगे वहां पे। इज दिस अंडरस्टूड? ओके, वी विल बी एडिंग दिस ओनली इन द लास्ट स्टेप एंड विल नॉट राइट इट इन द फॉर्मूले आल्सो। फॉर्मूले में भी नहीं लिखूंगा मैं। इज दैट फाइन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस फर्दर। क्योंकि जब आप लोग फॉर्मूले के साथ, और यहां पर वैसे भी मैं यहां पर सारे फॉर्मूले लिखने ही वाला हूं, हर स्टेप में मैं लिखता हूं, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले आते नहीं है, तो आई विल बी नीडिंग योर हेल्प फॉर दैट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके स्क्रीन पर, ये रहा। दिस इज, ये ऐसा इंटीग्रेशन है, अरे देवा, क्या ऐसा है? ठीक है ना? अच्छा, इंटू डी एक्स रहता है, देखो यहाँ पे इंटू डी एक्स। ओके, दिस इज बहुत भयंकर दिख रहा है, तो इसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें से k इज अ कांस्टेंट बाहर आता है, तो इट विल बिकम k इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आ गया? अच्छा, बाय द वे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, जुदा कर लेते हैं हम इसको, तो क्या बनेगा बताइए? दिस विल बिकम 3 बाहर आए, 3 बाहर आएगा, वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, -4 बाहर आएगा, वेरी गुड, 1 अपॉन एक्स डी एक्स।
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x रेज टू 1 एंड x रेज टू हाफ x रेज टू 3 बाई 2। हाँ तो 1 अपॉन मेरे को डर लगता है। वेरी गुड, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Please do not get dragged and please answer it with me. -7 is a constant. Very good. हाँ? नहीं, x dx क्यों आएगा? देखिए देखिए यहाँ पे। हाँ, रुको ना जरा, रुको ना, थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है, इतना फास्ट मेरे को नहीं भागने को हो रही है। हाँ, पैर में पैर अटक के गिर जाऊंगा मैं। दिस इज x रेज टू 1 एंड x रेज टू हाफ, तो दोनों मिला के 3/2 होगा, और वो 1 अपॉन है तो ऊपर जाने के बाद -3/2 हो जाएगा। एम आई राइट? हाँ, तेरा वाला हो गया सॉल्व। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? 7, तू बहुत अच्छा है, तू बाहर निकल और अंदर आएगा 1 dx। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, याद रखिए, बोल्ड एंड अंडरलाइन। इज दिस ओके? तो यू आर ट्राइंग टू से दिस इज 0? नो 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 नो। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वो नेहा ने जो फॉर्मूला डाल दिया है वो ग्रुप पे जरा उसको ओपन करो। हाँ, वेरी गुड, tan x। बाय द वे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज log x, log x, log x। हाँ, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यू सी। और यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x। हाँ, ये फॉर्मूले लिख दिए। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सो दिस इज 3 tan x, यू सी, -4 log x प्लस x रेज टू -3/2 प्लस 1 इज -half अपॉन -half minus 7x plus c, you see. So what will be the final answer? The final answer is given by 3 tan x minus 4 log x, ये ऊपर जाएगा -2 upon x, 2 upon root x minus 7x plus c. Is this okay? Is that clear? ओके, मुझे लगता है शायद अपर्णा और रोहित को लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट आपको लिए उसको एक फॉर्मूला पेज आपके सामने रखना है, ठीक है? प्लीज कीप द फॉर्मूला पेज बिफोर यू। बाकी लोग भी रखिए फॉर्मूला पेज अपने अपने सामने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले आपको याद ही हो, तो इसलिए बेटर होगा कि फॉर्मूले आप लोग सामने रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। पहले हम इसको सेपरेट करेंगे, जुदा, और कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। हाँ, प्लीज टेल मी, गिव मी द फीडबैक। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, फॉर्मूला पेज, हाँ मुझे पता है। और एक चीज ऐसा है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट बाहर निकालिए, प्लीज ट्राई टू आंसर, डोंट गेट ड्रैग्ड, प्लीज ट्राई टू रन 1 स्टेप अहेड ऑफ मी एवरीवन। कांस्टेंट बाहर निकालना है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, एवरीबॉडी प्लीज। -5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, 4 x रेज टू -5 dx। अब हर बार ऐसे थोड़ी मैं करते बैठूंगा, इंटीग्रल अलग अलग करो। इसके बाद मैं यह स्टेप मन ही मन में करूंगा। कैसे करूंगा? मन ही मन में। तो चलिए अब इसका आंसर क्या आएगा? 2 x रेज टू 4/4 5x स्क्वायर अपॉन 2। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं एवरीबॉडी, यहाँ पे और यहाँ पे। I'll be using the formula x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1, समझे? और वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log x, इज इक्वल टू log x। समझ में आ गई बात? तो अप्लाई करके बताइए क्या बनेगा ये? 2x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, बोले तो 4 and 4, -5x रेज टू 1 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर अपॉन 2। एनी डाउट्स? समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? बताओ ना भाई।
मीडियम पेस। अच्छा अभी खेल अगला वाला। हाँ, +3 1/x का इंटीग्रेशन आएगा log x +4x⁻⁵ बोलो ना, माइनस, वेरी गुड, ऐसा बोलने का। हाँ बहुत सिंपल है, फोकस करो। अपॉन -4 + c, भगवान के नाम से c लगा देने का, ठीक है। तो व्हाट यू गेट देयर, नाउ दैट इज इक्वल टू x⁴/2 -5/2x² +3 log x -1/x⁴, 4 गया, बहुत जोर से गया, +c। इज दिस ओके? एनी डाउट्स? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? वी आर डूइंग मैथ्स इंटीग्रेशन। हाँ इतना समझ में आ गया तो भी काफी है। इज दिस ओके? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इंटीग्रेशन, इसका क्या करेगा? इसको मैं लिखूंगा 3 पहले बाहर, वेरी गुड, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 3 बाहर x³/x⁵3/2 है ना, क्यूब है ना वो, -2 x/x√x dx +5 x⁻³ x√x इज x⁻³ ऊपर जाके बनेगा -2। ए समझा ना रे? ओके, अब क्या बचेगा देखिए यहाँ पे a⁻m/a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, है ना। तो a क्या होगा? x⁻³ - 3/2 समझी? ये x गया, बहुत जोर से गया, हाई हाई। हाँ अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे x⁻n वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx इज 2√x यूजी। और यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे भी वही होगा, x⁻n वाला, यहाँ पे और वहां पे। समझ में आ गई बात? अप्लाइंग वी गेट, क्या गेट वी? तो इस इंटीग्रल को मैं बोलूंगा i। व्हाट इज i? इज इक्वल टू, बताइए 3 × x⁻³ + 1 x⁵5/2 अपॉन 5/2 -2 टाइम्स यह और 2 टाइम्स वह, नहीं ब्रैकेट है ना मेरे लिए, +5 x⁻³ - 1। आर यू ऑल आंसरिंग दैट? -1/2। आर यू ऑल आंसरिंग दैट? Am I going very fast? Are you all able to understand? घसीट रहे हो क्या? घसीटा राम जी कोई है? नो घसीटा? ओके, so what is that equal to? This will become 6/5 x⁻5/2 -4√x -10/√x plus c. You see? Hello? Is this okay? आज के दिन समझ में आ गया तो भी चलेगा। अब आफ्टर कपल ऑफ डेज आई वांट यू ऑल टू आंसर, तो स्पेसिफिकली आप दोनों के लिए। बाकी तुम तीनों को तो आना ही चाहिए आंसर। हाँ, मुंह बंद करके पिक्चर नहीं देखने का, यू हैव टू स्पीक इट आउट लाउडली एंड क्लियरली। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच गए हैं हम। 1 में से जो मैंने नहीं सॉल्व किए वो आपके लिए है। अब 2 एंड यू नो योर फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री हैज कम हियर नाउ। सुपर से ऊपर, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, लेकिन आई वांट टू पुट इट इन द सॉल्वेबल फॉर्म। तो यहां पर मैं इस 1 के लिए लिखूंगा कि भाई तू क्या है, वो है नहीं cos²x/2 प्लस sin²x/2। यू सी, इजंट इट? अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं करूंगा, अच्छा लगता है इसके लिए, फिर आपको सब आगे जाके समझ में आ गया क्यों अच्छा लग रहा था, ठीक है। अच्छा मैं बोलूंगा ये, एक सेकेंड ना,
1 माइनस साइन एक्स, तो आई थिंक नो 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 नो, ये नहीं अच्छा लगेगा मुझे, मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो सिंपली देयर इज सिंपलर वे ऑफ डूइंग इट। और नहीं, बचपन में एक बार जब आप 8th या स्टैंडर्ड में थे, 8th या 9th स्टैंडर्ड में, दैट टाइम यू हैड लर्न समथिंग कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपने सीखा है, इसका जो कंजुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, तो मैंने कर लिया। अब क्या बचा? हाँ जी, अपॉन, अच्छा, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। बराबर है क्या? दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यह कॉस स्क्वायर एक्स है और मेरे को लग रहा है कि भाई तू अलग अलग ही बैठ, अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है ना? कैन आई से सो? कैन आई से सो? ओके, अब हम इसको बोलेंगे कि भाई तू अलग ही हो जा। साइन अपॉन कॉस is tan x and 1 upon cos is sec x into dx minus, oh my god, मैंने इसको कहीं देखा है, I know, derivative of sec x is sec x tan x and integration of sec x tan x is sec x, you see, बराबर है, and this is tan square x, लेकिन मेरे पास tan square x का कोई फार्मूला नहीं है, छे नो नो, हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है कि sec square x minus 1 is tan square x, you know, oh my god, you see, और इसके लिए मेरे पास फार्मूला है, so what do you get there? This is integration of sec x tan x dx minus integration of sec square x dx, यह माइनस और यह माइनस वो होगा प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, you see, therefore what is this integration? Keep the formula पेज ओपन, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का I1 देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का I1, so what is that? sec x minus integration of sec square x dx tan x and 1 dx x plus c स्क्वायर नहीं, आप 1 को ऐसा भी देख सकते हो, x रेस टू 0 इंटू डी एक्स इज एक्स रेस टू 1 अपॉन 1, हेलो, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। और एक देखो, एक के ऊपर एक फ्री और एक आ गया ट्रिग्नोमेट्री, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बचपन में एक बार जब आप 10th में थे ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स? वेरी गुड। एंड व्हाट इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स? 1, वेरी गुड। अच्छा, कैन आई फैक्टराइज दिस? a प्लस b, a माइनस b, and I see that, so I'll multiply and divide by something something, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब लिंक कहां से लगती है देखा, ऐसे लिंक लग गई, इसकी लॉटरी लग गई, sec x माइनस tan x, समझा ना रे, हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, tan x, ये समझ में आ गई बात? अच्छा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? वही होगा, मतलब वही होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1, समझे? तो न्यूमरेटर क्या होगा? इंटीग्रेशन sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब मैं इसे बोलूंगा कि tan स्क्वायर x तो tan स्क्वायर x नहीं है, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 है,
देखे ना, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अब अगर ये ब्रैकेट शैकेट ओपन कर दे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स, सही है, माइनस आप लोग बता सकते हो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस डी एक्स, समझ में आ गया, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, टान एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है, एंड क्या है, सी है। यू सी, एनी डाउट्स, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और एक आ गया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये स्क्वायर रूट से मेरे को बहुत डर लगता है, क्या बोले, तुमको भी डर लगता है, कोई बात नहीं। सो हम लोग यहाँ पर इस वन के जगहों पर क्या लिखेंगे पता है, इस वन के जगहों पर लिखेंगे, नहीं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और वो मुझे कहां से ख्याल आया, यहां से, क्योंकि ये sin 2x है, एंड व्हाट इज sin 2x, अच्छा, हमारे जमाने में तो 2 sin x cos x हुआ करता था, डबल एंगल फॉर्मूला, राइट ना, इनटू dx, and surprise surprise, this is a perfect square, a square plus b square plus 2ab, you see, so that is equal to cos x plus sin x bracket square। हाँ, मन ही मन में उसको उड़ा दिए, तो क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, वेरी गुड, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x, माइनस sin, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x, cos x प्लस c, यू सी, वेरी गुड। और ट्रिग्नोमेट्री का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। अब cos 2 थीटा के, बचपन में एक बार जब आप 11th में थे तो cos 2 थीटा के भाई आपके 4 फॉर्मूले थे, 1 2 3 4, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग पढ़ते बहुत अच्छे से हो, रीड इट सो नाइसली। एनीवेज, नाउ कम बैक, अब हमको यह फॉर्मूला चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, यह फॉर्मूला, इजंट इट, और एक फॉर्मूला चाहिए हमको, कौन सा, यह फॉर्मूला, जी, हाँ जी, बताइए, ये ब्लू वाला फॉर्मूला आपको रीअरेंज करने से कहाँ मिलेगा, ये -1 इधर आके बन जाएगा +1, सो व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, सही बोला, हेलो, एंड रेड वाला फॉर्मूला, इसमें cos 2 थीटा जो यहाँ है उसको वहां भेज दो और यहाँ से इसको यहाँ भेज दो, तो ये क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, बराबर है ना, एंड ओ माय गॉड इट इज सेम, दिस इज सेम, तो कहाँ मिलेगा आपको ये, दिस इज, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा dx। लेकिन ये जो √2 है ना, ये अच्छा है, इसको बाहर ही निकालो, साइन x होना चाहिए, x, स्पेलिंग गलत हो गया, x होना, तो साइन x dx, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, हाँ, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, हाँ, so the answer is minus √2 cos x dx, you see, minus √2 cos x plus c, is this okay, समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन,
और एक बार ट्रिग्नोमेट्री आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये है बड़ा एंगल और ये है छोटा एंगल। दिस इज long ago, once upon a time when you were in 11th standard. तो there were some formulae, आपको याद दिला दूं, there were some formulae like sine of a plus b, sine of a minus b, cos of a plus b, cos of a minus b. That was the first group. That was the first group of formulae, right? Now, then there was sine of a plus b plus sine of a minus b, जिसको हमने c बोल दिया था और इसको d बोल दिया था, तो दैट वाज sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d एंड cos d माइनस cos c था। याद है आपको कुछ? लगता है ट्रिग्नोमेट्री का एक बार फार्मूला टेस्ट लेना ही पड़ेगा। ओके, लेना ही पड़ेगा। अच्छा, इसी के अंदर आपके पास कुछ फॉर्मूले थे, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b एंड 2 sin a sin b। ऐसा कुछ हल्का सा फुल्का सा याद है आपको? थोड़ा थोड़ा किस किस को याद है? तो टेल मी द फर्स्ट फॉर्मूला, 2 sin a cos b is sin of a plus b plus sin of a minus b, समझे? एंड दिस इज sin of a plus b माइनस sin of a minus b, समझे क्या? दिस इज cos of a plus b plus cos of a minus b एंड दिस इज cos of a minus b माइनस cos of a plus b, है ना? अब ये फॉर्मूला, इसमें से ये पहला वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज बड़ा एंगल a, छोटा एंगल b। सो आई राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x cos 3x into dx. Well, I'll multiply it by 2 and divide it by 2. So this is 2 sin a cos b, and oh my god, this is the same formula. You see, तो यहाँ a क्या है और b क्या है? This is half integration of, बोलिए बोलिए बोलिए, sin of a plus b. So this is going to be sin of 7x plus sin of a minus b. अगर आपको चाहिए तो मैं इसको 4x 3x प्लस करके लिख दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, प्लस 3x प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 3x इंटू डी एक्स। नो, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा ये, साइन 7x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। इज दिस ओके? अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए मेरे को। अब आपके पास जो फॉर्मूले हो गए इंटीग्रेशन के, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? करेक्ट, माइनस कॉस एक्स। ये है I1 का फॉर्मूला, लेकिन इसका I2 क्या है जी? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए कॉस ऑफ ax प्लस बी। ये समझ में आ गया सबको? इज दैट क्लियर? तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला होगा? दिस इज 7x प्लस 0, तो यहां पर मुझे ax प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। समझ में आ गया? एंड यहां पर ये वाला समझ में आ गया? अप्लाइंग द फार्मूला वी गेट, क्या गेट वी? आई इज इक्वल टू हाफ, अंदर क्या आएगा बताइए, साइन ऑफ 7x। तो a के जगह पर 7 है, b के जगह पर 0 है, माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 7 कॉस ऑफ 7x प्लस 0 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c। So what will be the final answer? Minus 1 upon 14 cos 7x minus 1 by 2 cos x plus c. You see? Are you understanding that? Very good. I'll go for the next question.
अब देखिए यहां पे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, degree of numerator. Now first of all, I can see the question mark on your faces. What is degree? Degree is the highest power of x, highest power of x. What is the highest power of x here? 1. और डिनोमिनेटर का भी सेम है ना डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. Then we go for actual division, we go for actual division. तो हम इसको डिवाइड करते हैं, अच्छे से डिवाइड कर लीजिएगा. 3x माइनस 4 एंड 5x प्लस 2. तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 5x आएगा, विल बी 5/3. बराबर है क्या रे? हेलो हेलो हेलो. तो क्या आएगा ये, दिस इज 5x माइनस 20/3. अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, है ना, ऐसे. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, दिस गेट्स कैंसिल. सो दिस विल बिकम 2 + 20/3, 26/3. Okay, now in this case this is called as quotient, this is called as remainder, and this is called as divisor. बराबर है क्या, isn't it? divisor. अब मुझे एक चीज बताइए कि there is a formula for numerator upon denominator is equal to quotient plus remainder upon divisor. yes or no? याद नहीं है, समझ में आ गया? नहीं तो फिर if I'll write it as 31/5, 31/5 को हम कैसे लिखते हैं, 6 तो इसको 6 + 1/5 ऐसे ही लिखते हैं ना, विच इज, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो यहां पर ये वाला इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताइए प्लीज, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन जाएगा, 5/3 प्लस 26/3 डिवाइडेड बाय डिवाइजर 3x माइनस 4. समझा ना रे, इज दिस क्लियर रे, समझ में आ गया? चलिए अब इसमें से 5/3 इज अ कांस्टेंट आउट, इंटीग्रेशन 1 dx, माइनस 26/3 इज अ कांस्टेंट आउट, इट इज dx अपॉन 3x माइनस 4. डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ गया क्या? अच्छा, 1 dx का इंटीग्रेशन x, सो इट विल बी 5/3x माइनस 26/3. अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए गौर से. इसके लिए I1 का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्या आएगा, log x. इसी का I2 मुझे कौन बताएगा, 1/ax + b इंटू dx इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू ट्राई टू आंसर इट. मैं लिख रहा हूँ माइनस 1/a log ऑफ ax + b, इधर माइनस नहीं आएगा, बराबर है ना? तो आई यूज दैट फॉर्मूला हियर, क्या बन जाएगा बताइए, I2 वाला फॉर्मूला. सो दिस विल बिकम 1/3 log of 3x minus 4. logarithm is always taken for the positive numbers, इसलिए जब भी हम log लिखेंगे तो वहां पर मॉड्यूलस के साथ उसको लिखा जाएगा. एंड दैट्स द आंसर एक्चुअली, 26/9 हो जाएगा वो, बट दैट विल बी द आंसर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? ऑलराइट, आई विल सॉल्व वन मोर एंड देन वी कैन स्टॉप हियर. ठीक है, और एक सॉल्व करते हैं इसी टाइप का. अब देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में मैंने जो आपको बताया था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर होगा तो ये करना है हमें एक्चुअल डिवीजन, व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. यहां पर इक्वल था डिग्री. अगले केस में व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, 1 रे बाबा, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं. एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, माइनस नहीं, ओनली हाफ, x रेज टू हाफ है ना वो, x रेज टू हाफ. सो इज दिस ग्रेटर, यस. एंड देन वी गो फॉर एक्चुअल डिवीजन, नहीं x रेज टू हाफ है वो, -1/2 क्यों आएगा, अप नहीं भेजने का उसको, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ही रखिए ना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ही रखिए ना. चलिए, तो अब मुझे इसको डिवाइड करना है भाई. कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब मैं उसको ऐसे डिवाइड करूंगा,
यहाँ पर आई राइट इट एज 2x माइनस 7 एंड दिस इज 4x माइनस 1। रूट नहीं ले रहा हूं मैं, रूट नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ 4x माइनस 1। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि मुझे इसको इन द फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर लिखना है, आई वांट टू राइट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर। आप उसको ऐसा डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, मतलब कैसे, मतलब कुछ इस प्रकार कि भाई डिनोमिनेटर इज स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 है, तो मैं इसको 4x अपॉन 2 लिखता हूं। यहां पर 2x चाहिए ना मुझे, एक सेकेंड, कंफ्यूज हो जाओगे, उससे अच्छा है मैं डायरेक्ट डिवीजन ही कर लेता हूं। तो यहां पर 2 लिखो, 2 लिखो, 2 नहीं हाफ लिखना पड़ेगा, हाफ। तो ये आएगा 2x माइनस हाफ, यस और नो, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, 7 माइनस 7 प्लस हाफ माइनस 13/2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो व्हाट इज दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इसको डिविडेंड बोलते हैं ना रे, दिस इज डिविडेंड ना, डिविडेंड। ओके, सो डिविडेंड इज इक्वल टू quotient into divisor plus remainder, yes or no, this into this is equal to, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा यहाँ पर बताइए मुझे। so how can I write this 2x minus 7, 2x minus 7 is equal to quotient मतलब half into 4x minus 1 minus 13/2। so can I write this 2x minus 7, इस 2x minus 7 की जगह पर ये लिख सकता हूं मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, दिस इज हाफ 4x माइनस 1 माइनस 13/2 इंटू डी एक्स। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सेपरेट करना है, सो दिस इज हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 डी एक्स। यस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2x माइनस 7 की जगह पर ये लिख दिया है, आई डिडंट डू एनीथिंग। समझ में आया, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, माइनस 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1। समझ में आ गया, इज दिस ओके, ओके। अब यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, व्हाट इज x अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स ना, तो यहां से ब्रैकेट अपन स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट, क्या बचेगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 4x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट का स्क्वायर रूट, इज दिस ओके, माइनस 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1। चलिए अब मुझे इसे मैं स्क्वायर रूट नहीं लिखूंगा, बल्कि इसे मैं रेस्ट टू हाफ लिखूंगा, रेस्ट टू हाफ लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी ब्रैकेट रेस्ट टू n dx। दिस इज I2 फॉर, इसका I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू n, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/a ax प्लस बी ब्रैकेट रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इज दिस ओके, अच्छा। और यहां पर I1 का फॉर्मूला जो मैं बात करने जा रहा हूं, I1 का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x होता है 2√x, तो इसका I2 क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ax प्लस बी, इसका I2 क्या होगा 1/a टू स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा और यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अप्लाई द फॉर्मूला एंड आंसर इट प्लीज, क्या आएगा बताइए,
So what is integration I is equal to, it will be half into, बोलो क्या आएगा ये, 1 upon 4 into 4x minus 1 bracket raised to 3 by 2 upon 3 by 2 minus 13 upon 2. Okay, 1 upon a. What is a के जगह पर here 4. What is b के जगह पर here -1. तो 1 upon a क्या होगा 1 upon 4 into 2 square root of 4x minus 1. Is this clear? Plus c. Well, let me simplify now. Whatever is getting simplified, तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 इसके साथ cancel हो जाएगा. So what will be the final answer? The final answer will be 1 upon 12 4x minus 1 bracket raised to 3 by 2 minus 13 upon 4 square root of 4x minus 1 plus c. Well, that is the answer. Is this okay? And I think I'll stop here. Okay, I'll stop here. So this 3 mega 6. Yeah, I'll stop here today.